जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन. This is Laik Fanyadi. I'm your host for this podcast and Dr. Akka is with me. She will join me. Assalamualaikum. Thank you so much, Dr. Akka, for joining us. And then we have Mr. Rana Naveed with us. He is Assistant Registrar in the Mission Office. And now let me introduce you with our guest for this podcast. We have Professor Dr. Mohsin. सर आपकी जो प्रोफाइल है वो माशाल्लाह बहुत इफेक्टिव है. उसको बताते जाएं तो काफ़ी कुछ है बताने को, लेकिन मैं आपको सर का जो है शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ. सर जो है बेसिकली सर की जो पीएचडी है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर इंग्लैंड से है. 100 पीयर रिव्यूज पब्लिकेशन हैं और 10 पेटेंट्स हैं और जो है 3 इंटरनेशनल ग्रुप बुक्स चैप्टर हैं आपके. तो सर दैट इज़ वंडरफुल एंड थैंक यू सो मच आपने हमें ज्वाइन किया. सर जो है बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फैसलाबाद कैंपस जो है उसके कैंपस कोऑर्डिनेटर हैं. आज आप हमें बताएंगे यूनिवर्सिटी के बारे में, फैसलाबाद कैंपस के बारे में और उन तमाम फैसिलिटीज़ के बारे में जो हम यूनिटी फैसलाबाद के अंदर ऑफर कर रहे हैं. तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया. सर हमें पता चला है कि यूईटी का जो हमारा फैसलाबाद कैंपस है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह पे है. तो क्या ऐसा उसका यूनिक पॉइंट है लोकेशन का जो कहा जाता है कि हमें फैसलाबाद में जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कंपैरेटिवली हमें यूईटी फैसलाबाद कैंपस में जाना चाहिए? जी ये बड़ा आपका अच्छा क्वेश्चन है. फैसलाबाद क्योंकि इज़ आल्सो पार्ट द मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान और इट्स इंडस्ट्रियल हब. और इसका जो एडेड एडवांटेज है फैसलाबाद कैंपस का कि वो इट इज़ सिचुएटेड राइट इन द मिडल ऑफ द इंडस्ट्री. सो इंडस्ट्री इज़ वेरी वाइटल फॉर आवर प्रोग्राम्स वेदर इंजीनियरिंग और साइंसेज. तो हम बिल्कुल इंडस्ट्रियल हब में हैं विच इज़ very vital for our industrial collaboration projects and a lot of activities which we actually carry out jointly. अच्छा सर इसमें थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को आप गाइड कर दें कि यूटी फैसलाबाद के अंदर इस टाइम हम कौन कौन सी डिग्री प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं. जी starting with just a brief profile or history of UT Lahore Faisalabad campus. Considering the industry demand, so Faisalabad campus was established in 2004 and it is actually built on a vast land of 228 acres which is provided by the Punjab government. So we have total 17 different programs including 8 undergraduate programs, 5 master programs and 4 PhD programs. Among the 8 undergraduate programs we have following programs which are BS in mechatronics engineering, textile engineering, electrical engineering, chemical engineering, computer engineering, computer science, and we also offering BSc chemistry and BSc mathematics. So these are the programs which actually we are offering. And just to add that these are not just the programs that we are offering. Our engineering programs, they are accredited at level 2, which means it is based on Washington Accord. And these programs are accredited for 3 years or more, which also reflect the competency of the program and the department which are actually running them. सर हमारे इसमें मोस्टली प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो सिर्फ हम यूईटी फैसलाबाद कैंपस में ही कर रहे हैं. तो ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि हमने उनको पर्टिकुलरली फैसलाबाद कैंपस में ही इंट्रोड्यूस करवाया है? जैसे हमारे पास इंडस्ट्रियल हमारे पास टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है तो वो सिर्फ फैसलाबाद कैंपस में है, तो हम उसको क्यों सिर्फ फैसलाबाद कैंपस में ही करवा रहे हैं? जी जिससे मैंने आपको पहले बताया कि फैसलाबाद इज नोन फॉर मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान. इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ओवर देयर. A lot of other industries including the power and the chemical industry and manufacturing industry is also there. So considering the hub of textile engineering program was introduced at UT Lahore Faisalabad campus. So it is also working closely with other industries. All the departments are working closely with other industries, and also textile department is actively collaborating with the textile industries. That is the added advantage, and I think it is always said that there are things at the right time and the right place. So the UT has thought about it and built a campus and the department at the heart of the industry. ओके माशाल्लाह सर दैट इज़ वेरी वंडरफुल. सो अभी हम जो पॉडकास्ट बेसिकली कर रहे हैं
हम आपको बता रहे हैं यूटी लाहौर फैसलाबाद कैंपस के बारे में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जो आप जानना चाहते हैं यूटी फैसलाबाद के बारे में, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहसिन, जो कि कैंपस कोऑर्डिनेटर हैं, वो हमें यूटी फैसलाबाद के बारे में सब कुछ बता रहे हैं आज। तो सर, आपसे एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि यूटी फैसलाबाद के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो हैं वो हम स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं। जी अच्छा, फैसलाबाद कैंपस में वी आर प्रोवाइडिंग comprehensive facilities to the students since it's a campus of UT and UT has its long legacy of 103 years. So we are actually providing them with the facility of transport, hostel facilities. Similarly, we have good gym, medical facilities. We have very good library, having thousands of books available physically as well as HEC digital library access. On top of it, we have the smart campus access and internet access to all the students across all the campus. ओके सर, हमारे पास क्वेश्चन भी आ रहा है कि इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन हो रही है फैसलाबाद कैंपस में, क्योंकि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सिर्फ फैसलाबाद कैंपस में है। तो ऑब्वियसली ये सपोज किया जाता है बीइंग अ स्टूडेंट कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट जो सिर्फ एक ही कैंपस में हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा रीच आउट करते हैं और उसका मेरिट भी हाई होने के चांसेस होते हैं। तो उसका मेरिट क्या है और क्या वो इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन हो रही है वहाँ पे? अगर सर आप जस्ट हमें इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन का बता दें, एक तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के बारे में बता दें, और साथ साथ हमें आप जो दूसरे हमारे प्रोग्राम्स हैं उनमें अगर हमारी कुछ इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन है, ऑफकोर्स वो काफ़ी सारी हैं, अगर हम लिस्ट प्रोवाइड करें, अगर आप चंद एक का हमें थोड़ा सा गाइड कर दें, क्योंकि ये क्वेश्चन है शायद अली ने पूछा, तो हम उनको थोड़ा गाइड कर देते हैं। जी अच्छा, जिस तरह हमने बताया कि फैसलाबाद इज हैव द हार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, हमारी बड़ी एक्टिव इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन है। वी हैव साइंड द MOUs विद फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड वुमेन। सिमिलरली वी हैव रिसेंटली साइंड द MOU with Interloop, which is the #1 exporter of the country. Similarly, we are working closely with a lot of other industries. Archroma, which is the top chemical manufacturer, deals with the general chemicals and also with the textile chemicals. So we are working very closely with the textile industry and all the other industries like Chamber of Commerce and other ones. Recently, just giving you another example, that we have held the 7th International Conference on Sustainable Textile, and that was in collaboration with Masood Textile Mill and Ibrahim Fibers. So we are doing a lot of collaboration. Similarly, our electrical department is working and collaborating with IEEE. It has its own chapter at Faisalabad campus. So a lot of collaboration with government sector and private sector and NGOs is going on at the Faisalabad campus. जी थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, सर ने जिस तरह हमें गाइड किया है कि यूटी फैसलाबाद जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो फैसलाबाद में लोकेटेड है तो सिर्फ हम लोकल इंडस्ट्री को ही बेसिकली कैप्चर कर रहे हैं, बट यूटी फैसलाबाद के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो इंटरनेशनली भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। जैसे कि इंटरलूप का सर ने नाम लिया कि वी हैव कोलैबोरेशन विद दैम, IEEE के साथ स्टूडेंट की सोसाइटीज़ हैं उसमें हम उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो दैट इज़ वंडरफुल। अच्छा सर, कुछ और क्वेश्चन आ रहे हैं, लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चन देन वी गो अहेड विद आवर जनरल क्वेश्चंस। मेरा ख्याल है हमें ये सर से पूछना चाहिए, सर नवीद से, कि कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि हमारे पास नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं, कुछ ऑफर हो रहे हैं, जस्ट लाइक BSAI है, BScs है, तो क्या उनके लिए भी टेस्ट रिक्वायर्ड है कोई? थैंक यू डॉक्टर आपका। ये हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं जो ECAT बेस्ड प्रोग्राम है, इनमें साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, AI और ऑल इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, जिसकी डिटेल हमारी वेबसाइट पर भी मौजूद है। इनके लिए ECAT मैंडेटरी है, और कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं जिनमें ECAT मैंडेटरी नहीं है, लेकिन AI, डेटा साइंस, कंप्यूटिंग जो प्रोग्राम है ये हमारे ECAT बेस्ड प्रोग्राम है, इसके लिए ECAT मैंडेटरी है। वट एवर आपने पहला ECAT दिया है, वट एवर आपने दूसरा ECAT दिया है, तो आप उसमें कंसिडरेबल हैं और ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच। ओके, वी हैव अनदर क्वेश्चन, इज देयर हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल इन फैसलाबाद कैंपस? Yes, we have actually quite good hostel facilities. For female students, we have one separate hostel facility, and for boys, we have double story 3 hostel facilities. So overall, we have 4 hostels which are accommodating, and at the moment, we are providing
all the students which are non-resident to the Faisalabad and trusted to avail the hostel facility. So without any discrimination, they are provided with the hostel. परफेक्ट। अच्छा ऑडियंस, मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि यूटी फैसलाबाद का जो कैंपस है, यूटी का कैंपस है, आप जब यूटी फैसलाबाद से पढ़ते हैं यू गेट द डिग्री ऑफ यूटी लाहौर ऑफ कोर्स। और यूटी फैसलाबाद के अंदर वो तमाम फैसिलिटीज़ हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें, जिस तरह सर ने बताया कि वी हैव हॉस्टल्स, ट्रांसपोर्टेशन, सोसाइटीज़, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, you know, foreign qualified faculty, so everything is available in your Faisalabad campus because जो हमें added advantage है Faisalabad campus का, that is between the you know all the industries। अगर हम geographically उसको देखें तो जितनी भी हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके बिल्कुल कोर सेंटर के अंदर है, तो उसमें आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, वो ये है कि यू वर्क वेरी क्लोज टू द इंडस्ट्री। आपको इंटर्नशिप चाहिए, आपको कोलैबोरेशन है, आपको जॉब चाहिए, सो यू आर वेरी क्लोज टू, फिजिकली क्लोजनेस है ऑफ कोर्स उसमें। आपको जब आप कनेक्ट करते हैं इंडस्ट्री में तो आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। और साथ साथ जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि यूटी फैसलाबाद के अंदर हम साइंसेस के प्रोग्राम्स भी ऑफर कर रहे हैं, बीएस केमिस्ट्री हम ऑफर कर रहे हैं और बीएस मैथमेटिक्स ऑफर कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों डिग्री प्रोग्राम्स हमारे जो है उनकी जो फीस है वो सब्सिडाइज्ड है, 50,000 पर सेमेस्टर जो हमारी फीस है। एंड फाइनली यू विल गेट द डिग्री ऑफ यूटी लाहौर। एंड जब आप इंटरनेशनली अप्लाई करते हैं या इंटरनेशनल कंपनीज में अप्लाई करते हैं, व्हेन यू मेंशन यू गॉट अ डिग्री फ्रॉम यूटी दैट इज यू नो वर्ल्ड टॉप रैंक यूनिवर्सिटी, तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। सो वेल सर इसके अलावा भी हमारे पास स्कॉलरशिप्स हैं जो हम ऑफर करते हैं फैसलाबाद कैंपस। जी अच्छा, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा जो भी लाइक सब हम बता रहे थे रिगार्डिंग बीएस केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, कि ये हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट्स हैं। फैकल्टी जो है बड़ी एक्सपीरियंस्ड है और हमारे पास 3 और मोर पीएचडी फैकल्टी है इन ईच डिपार्टमेंट। So running a department is basically focusing on the quality of the teachers as well. So good lab facilities, and also we are offering master program in chemistry as well. So these are quite good our programs, and they will really polish your skills at a very good level. बिल्कुल ऐसा ही है सर, क्योंकि अगर आप देखें ना जो केमिस्ट्री है या मैथमेटिक्स है, ये तो उसमें सारे सब्जेक्ट्स हमारी फैकल्टी मेंबर इंजीनियरिंग की डिग्रीज में भी ये कोर्स पढ़ाए जाते हैं। और जो एक बड़ा यूनिक पर्सपेक्टिव अगर आप इस एंगल से देखें तो अब आप जो मैथमेटिक्स है और जो केमिस्ट्री के प्रोग्राम्स हैं, ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैंपस के अंदर पढ़ेंगे तो आपका जो कल्चर होगा ना वो बड़ा डाइवर्स होगा। आप इंजीनियर्स के साथ आपकी जो नेटवर्किंग होगी, आपकी नेटवर्किंग साइंटिस्ट के साथ होगी जो कि कंप्यूटिंग हमारे प्रोग्राम्स हैं। सो यू विल गेट यू नो वेरी डाइवर्स एनवायरनमेंट इन द कैंपस। सो लेट्स टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस। आज माशाल्लाह फैसलाबाद के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि हमारा जो फैसलाबाद कैंपस है दैट इज़ वंडरफुल, वी आर हैविंग ऑल द फैसिलिटीज इन दिस कैंपस। सो स्पोर्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है सर, तो आप वहाँ से अक्सर रहते हैं, उधर गुजरते भी होंगे, देखते भी होंगे, तो कौन कौन सी, एक तो ये बताएंगे वहाँ पे लोग स्टूडेंट्स किस किस्म की स्पोर्ट्स ज़्यादा खेलते हैं और फैसिलिटीज़ कौन कौन सी हैं वहाँ? अच्छा, regarding sports, we are very active campus sports committee and student society as well. So we are actually regularly conducting various sports leagues. The famous one is obviously cricket. So we have very good cricket team, and then also do participate at national level at different competitions. So there is basketball teams as well. Other sports include football, even. We have the certain sports related to athletics as well, like jumping, running, and also this volleyball thing, and a lot of indoor sports. So table tennis and a lot of other indoor facilities are there. So overall, we do conduct regular leagues, not in the morning, but also at the night as well. Okay. And also during Ramzan, we have our very famous volleyball league as well. So regarding sports, Faisalabad campus is very active and it has a lot of grounds since it has a huge land available. इवन के सर आपकी जो फैसलाबाद की जो टीम्स हैं यहाँ पे हमारा जो सेंट्रल इवेंट होता है, स्पोर्ट्स इवेंट होता है, तो उसमें भी पार्टिसिपेशन के लिए यहाँ पे आते हैं। हम उनको यहाँ पे फैसिलिटी देते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर ही उनको हम रेजिडेंस देते हैं, यहाँ पे मैचेस होते हैं, हमारे जो कैंपसेस के कंपटीशन होते हैं। तो ऑफ कोर्स उसमें लास्ट टाइम मुझे याद है कि आई थिंक आप लोगों की 1-2 गेम्स के अंदर पोजीशन भी थी फैसलाबाद जो है कैंपस की। डॉक्टर साहब, लीक साहब लीजिए, एक मेरा इसमें फैसलाबाद कैंपस के जो हमारे प्रोजेक्ट के यहाँ कंपटीशंस होते हैं यूईटी में, इलेक्ट्रिकल में यहाँ लाहौर में यानी कि सेंट्रलाइज कंपटीशन होता है, तो उसमें फैसलाबाद के बच्चों ने कंपटीशन माशाल्लाह विन किया। दूसरा डॉक्टर साहब ये इसमें ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा,
तो हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनको ज़रा बताइएगा, क्योंकि फैसलाबाद पाकिस्तानी मैनचेस्टर, जैसे कि आपने पहले भी फरमाया, और फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल हब में हम वहाँ पे हैं, और हमारी जो यूनिवर्सिटी है और जो हमारा ये कैंपस है एक इंडस्ट्रियल हब में है। और इसमें जो मेरा एक ओपिनियन है, ये ज़ाती मेरा एक ख्याल है कि, और मेरे ख्याल में है भी ऐसा ही, कि उस इंडस्ट्रियल जोन में होने की वजह से फैसलाबाद कैंपस के बच्चों को ज़्यादा लेक साहब मौके मिल रहे हैं, क्योंकि वो इस इंडस्ट्रियल जोन में वेरी नियर अबाउट उनको प्रैक्टिकल लैब एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है। और इसमें डॉक्टर साहब जो हैं वो ज़रा ज़्यादा इसमें ज़रा बताइएगा, क्योंकि आप उसको हेड करते हैं कैंपस को, तो बीइंग ए कैंपस कोऑर्डिनेटर, जो उन बच्चों की जो वहाँ के इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के हैं स्पेशली बच्चे, और स्पेशली जो कि हम जिस हब में बैठे हैं वो टेक्सटाइल का एक हब है, तो उसमें ज़रा रोशनी डालिएगा उसमें कि टेक्सटाइल के हवाले से, इंजीनियरिंग के हवाले से इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कितनी ज़्यादा होती है उस कैंपस में। जी, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है वो फैसलाबाद कैंपस में काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी कोलैबोरेशन एट डिफरेंट लेवल है। अगर हम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को या इंटरनेशनल इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस को भी देखें तो वो फोकस करते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हों, फाइनल ईयर में इंकरेज किया जाता है, बल्कि एक सर्टेन नंबर जो मैंडेटरी है कि आपका इंडस्ट्रियल कोलैबोरेटेड या जो आपका सुपरवाइज प्रोजेक्ट्स हों, तो उसमें फैसलाबाद कैंपस को बड़ा एडवांटेज है, स्पेशली क्योंकि हमारे जितने प्रोग्राम्स हैं, या तो ये इंजीनियरिंग के प्रोग्राम है या साइंसेस के प्रोग्राम है, और उसमें इंडस्ट्री जो है वो एक्चुअली एट द हार्ट ऑफ इट। सो आउटकम बेस्ड एजुकेशन, चाहे वो हमारे इंजीनियरिंग के प्रोग्राम है, चाहे हमारे साइंसेस के हैं, तमाम जो है वो आउटकम बेस्ड एजुकेशन पे हैं, और आउटकम बेस्ड एजुकेशन इज प्राइमरीली फोकसिंग ऑन इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री से फीडबैक लेना, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनके साथ कोलैबोरेट करना, और बच्चों के लिए इंटर्नशिप्स और जॉइंट प्रोजेक्ट्स करना, ये ज़्यादा आसान है हमारे फैसलाबाद कैंपस में, क्योंकि बिकॉज वी आर सिचुएटेड राइट इन द मिडल ऑफ द इंडस्ट्री। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन है, मैं क्विकली उनके खुद आंसर कर देता हूँ। एक है स्कॉलरशिप्स का। बिल्कुल जी, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। यूटी कलेक्टिवली जो है वो तकरीबन हर साल 800 मिलियन प्लस स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को दे रही है। दूसरा एक सवाल है कि मैं केपीके से हूँ तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। जो हमारी ऑल पाकिस्तान की कैटेगरी है उसमें आप दो तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। एक, आप अपनी नॉमिनेशन के थ्रू आ सकते हैं। जो नॉमिनेशन है उसकी डिटेल हमारे प्रॉस्पेक्टस में मौजूद है। और अगर आप ओपन मेरिट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ओपन मेरिट पे भी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग जो हमारी फैसलाबाद कैंपस में हम ऑफर कर रहे हैं उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपने कोई भी जो पीईसी के रिकॉग्नाइज्ड टेस्ट है, जैसे हमारा ई-कैट है, और अगर राना साहब आप हमें थोड़ा सा गाइड कर दें इसमें। बिल्कुल लेक साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, ये जो हमने ऑल पाकिस्तान जो इन प्रोग्राम्स में, एक तो इनके प्रोग्राम्स की बहुत डिमांड थी, और ऑल पाकिस्तान से हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती थी, पाकिस्तानी बच्चे रिक्वेस्ट करते थे कि वाई वी आर नॉट देयर इन डायरेक्टली इन यूईटी एडमिशंस। तो उसमें हमने इनकी नॉमिनेशन जो सीट्स हैं, नॉमिनेटेड जो इनका प्रोसेस प्रॉस्पेक्टस में प्रिस्क्राइब्ड है, वो अपनी नॉमिनेटिंग एजेंसी के थ्रू नॉमिनेट होते हैं, और उन्होंने उस प्रोविंस में, उस एरिया में कोई ना कोई पीईसी अप्रूव्ड टेस्ट में अपीयर हुए होते हैं, तब वो नॉमिनेशन में भी आते हैं। तो इसी तरह हमने इनको अपॉर्चुनिटी दी है। अगर उन्होंने यूईटी, और हमारा जो यूईटी का ई-कैट है ये पूरे पाकिस्तान में वैलिड है। अगर कोई बच्चा ये टेस्ट देता है तो दैट इज़ वेरी गुड, और अगर कोई बच्चा वो टेस्ट नहीं दे सकता तो अदर प्रोविंसेस में, जैसे यूईटी पेशावर एक टेस्ट कंडक्ट करवाती है, एनडीटी कराची करवाती है, यूनिटी जॉमशोरा करवाती है, ईटा का होता है। कोई भी पीईसी एक्रेडिटेड टेस्टिंग बॉडी का आपने टेस्ट दिया हो तो यू कैन अप्लाई। और इसमें लाइक सब थोड़ा और हम इसको डिटेल में लें तो ऐसे भी प्रोग्राम्स हैं जिसमें टेस्ट है ही नहीं, ठीक है, तो उसमें अगर आप उस तरफ जाना चाहें तो आप अप्लाई करें, वो ज़रूर अप्लाई करें इंशाल्लाह। अभी तक जो हमने ऑल पाकिस्तान में प्रोग्राम जो ऑफर किए ना, वो उसमें मैं रिपीट कर देता हूँ। तो ये हमारे ई-कैट बेस्ड प्रोग्राम है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और इसमें जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, माइनिंग इंजीनियरिंग है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, केएस के कैंपस में हमारा जो सिटी कैंपस है, न्यू कैंपस, और इस तरह नारवल कैंपस में ईस्टर्न सिटी रीजनल प्लानिंग है, प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है। तो जो ऑल जो है गेट्स ओपन फॉर द ऑल पाकिस्तानीज। थैंक यू सो मच। एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जो हमारे डिफरेंट कैंपसेस हैं उनकी डिग्री क्या स्टूडेंट्स को मिलेगी या यूईटी लाहौर की मिलेगी? तो हमारे जितने भी कैंपसेस हैं अगर आप उनमें इनरोल होते हैं तो आपको डिग्री यूईटी लाहौर की ही मिलेगी। आपकी डिग्री पर मेंशन होगा कि आपने यूईटी लाहौर से डिग्री ली है, मेन कैंपस की आपको डिग्री मिलती है। कहीं पे भी हमारे कैंपसेस का मेंशन नहीं होता आपकी डिग्री पे। और फिर आप अपनी सीवी में लिख सकते हैं कि आपने जो है ना वो डिग्री जिस यूनिवर्सिटी से की है
वो दुनिया में टॉप इस रैंक पे रैंक कर रही है, जो भी उसमें रैंक, क्योंकि ऑफकोर्स हम हर साल जो है रैंकिंग इंप्रूव कर रहे हैं। इस टाइम यूटी जो है वर्ल्ड वाइड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर 205 नंबर पे है, तो उसको आप जब मेंशन करेंगे तो ऑफकोर्स यू विल गेट बिग बेनिफिट। ओके, लेट्स टेक यू क्वेश्चन। और जैसे ही हम स्कॉलरशिप की बात कर रहे थे, लाइक हमारे पास क्योंकि यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आती है, और इवन हम सर मोहसिन से भी पूछेंगे कि हम फैसलाबाद में बाकी भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं, तो क्यों स्टूडेंट प्रेफर करते हैं कि वो यूईटी फैसलाबाद कैंपस में जाएं? क्योंकि एक तो स्टूडेंट के माइंड में आता है कि ये एक यूनिवर्सिटी का सब कैंपस है, तो इसमें फैसिलिटीज कंपैरेटिवली मेन कैंपस कम होंगी, तो हमें इस साइड पे नहीं जाना चाहिए। तो क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है और इंटरनेशनली कंसिडर होती है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ स्कॉलरशिप ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाते हैं, इवन अगर उसका मेन कैंपस है लेकिन वो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कम है, तो उसमें नंबर ऑफ स्कॉलरशिप भी कम होते हैं। अब जैसे हमारे लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे, तो होनहार स्कॉलरशिप की जो स्कीम आई थी, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में इधर टॉप मेरिट के बच्चे आते हैं, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 95% स्टूडेंट्स जो हैं 2024 सेशन के सारे होनहार स्कॉलरशिप ले रहे हैं। सो जितने भी गवर्नमेंट लेवल के स्कॉलरशिप्स आते हैं, इस तरह से नैज मिलता है कि वो स्कॉलरशिप अवेल करते हैं। सर और क्या फायदा होता है कि बच्चे अगर यूईटी फैसलाबाद कैंपस में आते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ये काफ़ी आता है हमें, और मेरे ख्याल में अगर आप इन सबको आज बता दें कि वो क्या चीज़ है कि यूटी फैसलाबाद जो है वो फैसलाबाद में बाकी यूनिवर्सिटियों से भी जो है ना, वो क्या प्लस पॉइंट्स है हमारे उसमें। जी अच्छा, इसमें जो मेजर चीज़ है, क्योंकि यूटी इज़ बेसिकली प्राइमरीली एन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी and now offering a lot of programs in sciences as well. So UT has a legacy of 103 years. तो अगर हम फैसलाबाद की बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिहाज से देखें चीज़ों की, तो इसकी ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल रैंकिंग है। सेकेंडली जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया कि अगर हम इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स को देखें, तो हमारे तमाम जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं दे आर एक्रीडेटेड बाय PEC एट लेवल 2 and for 3 years or more, which also reflect कि they are working at a very good level. और इसमें कोई डाउट इसलिए भी नहीं है क्योंकि it is run by UET, and UET always has the centralized, lot of centralized system, faculty development program, PhD programs, undergraduate hiring, and even the faculty and staff hiring. So everything is managed by UET Lahore. So that is the reason that it has set a very good standards. And on top of it, industry also wants the graduate of UET Lahore. So this tag has not only proven over the time, and our graduates also perform very well. So considering the legacy of UET and the kind of grooming and polishing we are providing under the umbrella of UET Lahore is actually we distinguish us with other departments and other universities. सर हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है जिसमें स्टूडेंट्स ये पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि डिग्री तो हर बच्चा ले लेता है, इशू आता है कि डिग्री लेने के बाद वो खुद को जॉब प्लेसमेंट उनकी कहाँ पर हो सकती है। तो ये मोस्टली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करने के बाद वो कहाँ पे उनकी ओपनिंग्स हो सकती हैं। अच्छा, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग सिंस अगर हम देखें तो ओवरऑल पाकिस्तान में बड़ी कम जगह टेक्सटाइल इंजीनियरिंग प्रोग्राम ऑफर हो रहा है, क्योंकि इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग। और अगर हम जॉब्स के लिहाज से देखें तो इट इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स जो कि ग्रेजुएट्स जो हैं बिफोर ग्रेजुएशन या इमीडिएटली आफ्टर 1 month ऑफ देयर ग्रेजुएशन दे सिक्योर द जॉब, since there is a huge industry and we are working very closely with them. So there is added advantage that in textile engineering, since the industry is number is so high that you will get the job immediately. और इसके साथ साथ अगर हम टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के अलावा बाकी जो हमारे डिसिप्लिन हैं इंजीनियरिंग और साइंसेज के, इसमें भी जॉब प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। और इसका वन ऑफ द रीज़न ये है कि यूईटी जो है वो खुद भी बहुत सी एफर्ट्स कर रही है। यूईटी इज़ एक्चुअली कंडक्टिंग, यूईटी सेंट्रल लेवल पे कैरियर फेयर कर रहा है, विच इज़ द highestly participant by the industry at the national level. Similarly जो हमारी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स हैं वो कैंपस लेवल पे चल रही होती हैं फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। तो हमारी ओवरऑल जो रिक्रूटमेंट ड्राइव्स हैं एज कम्पेयर टू द अदर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स एंड यूनिवर्सिटीज, जॉब के जो प्रोस्पेक्टिव हैं, इट इज़ वेरी इम्प्रूव्ड एंड बेटर वन एज कम्पेयर टू द अदर डिपार्टमेंट्स। अच्छा डॉक्टर साहब ज़रा बताइएगा कि स्पेशली जो हमें इंडस्ट्रियल हब में है, फैसलाबाद कैंपस जो कि एक इंडस्ट्रियल हब में है, और वहाँ पे जो हॉस्टल लाइफ है वो कैसी है? क्योंकि बहुत बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि
वहाँ हॉस्टल्स कैसे हैं, हम कैंपस में वहाँ रहेंगे तो कैंपस लाइफ जो एक तो डे लाइफ होती है, जब हॉस्टल की जो आफ्टर एकेडमिक्स लाइफ होती है ना, वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग होती है। तो उसमें ज़रा बताइएगा कि जो हॉस्टल में हमारे फैसिलिटीज़ बच्चों की कैसी हैं, और वो बच्चे क्या क्या फैसिलिटीज स्पोर्ट्स की फॉर्म में किस तरह वो ज़रा काइंडली उसको ज़रा ब्रीफ कीजिएगा कि हॉस्टल लाइफ कैसी है फैसलाबाद कैंपस में। जी अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हॉस्टल गिव्स यू लॉट ऑफ ग्रूमिंग और पॉलिशिंग। तो ये एक नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है और प्रोविंस लेवल पे काम करती है, तो आवर इवन राइट नाउ आवर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर हॉस्टलाइज्ड। सो हॉस्टल में अगर हम बेसिक फैसिलिटीज जो कि बड़ा कम होती हैं कि बाकी जगह अवेलेबल हो, नंबर वन इज डिजिटल लाइब्रेरी एक्सेस। Student when go to their rooms, they have the access to the huge number of books and journals round the clock, so they don't need to worry about that if they don't actually consult with the book during library timing. So they have the soft forms and access to digital library. Secondly, it is very good surveillance, centralized surveillance system is there. We have the mess facility for every hostel. They have a separate mess facility which is actually run by the students by themselves, so they have the committees and they run it over there. Similarly, we have sport facilities, and lot of sports like I mentioned earlier is also conducted in the evening. तो वो evening में sports जो हो रही हैं, night में sports, तो campus की बड़ी active life है। और on top of it हम जो है वो एटलीस्ट एक वीक में एक दिन जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है टू द डी ग्राउंड। वो फैसलाबाद की तरह कमर्शियल हब है, तो वहाँ तक जो है ना वो ट्रांसपोर्ट, वैसे तो डेली ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की जाती है पिक एंड ड्रॉप टू द डे स्कॉलर्स और टू द हॉस्टलाइट, लेकिन इवनिंग में उनको सेपरेट वन डे फॉर बॉयज एंड वन डे फॉर गर्ल्स, वो हम उनको ट्रांसपोर्ट एडिशनल फैसिलिटी भी देते हैं। वंडरफुल सर। अच्छा सर, इसमें ना एक दो क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन थोड़ा जेनेरिक है, उसका मैं खुद आंसर कर देता हूँ कि बीएस मैथमेटिक्स करने के बाद किस फील्ड में हम जा सकते हैं। जी अच्छा, हमेशा बीएस मैथमेटिक्स को ना इस तरह देखा गया है कि आफ्टर बीएस मैथमेटिक्स आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, टीचिंग करेंगे, आप किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो मैथमेटिक्स है इट्स मदर ऑफ ऑल साइंसेस, इसकी एप्लीकेशन हर साइंस के अंदर है। अगर आपको मैं थोड़ी सी मिसाल दूँ, इस टाइम दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बैकबोन क्या है? सारी मैथ है। जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, तमाम के पीछे मैथमेटिक्स है। हमारी इंटीग्रेशन यूज हो रही है, डेरिवेशन यूज हो रही है, डिस्क्रीट मैथ यूज हो रही है। तो मैथमेटिक्स को हमेशा आपने इस नज़र से नहीं देखना कि आफ्टर डूइंग मैथमेटिक्स आप क्या करेंगे, बल्कि आप इस पर्सपेक्टिव में देखिए कि मैथमेटिक्स की डिग्री करने के बाद आप उस मैथमेटिक्स को आप अप्लाई किस डोमेन में करना चाहते हैं। आप इंजीनियरिंग में देख लें, सारी प्रॉब्लम मैथ की हैं। तो रिसर्च में देखें तो रिसर्च जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्रीब्यूशन है मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स को आप इस नज़र से देखिए। अगर आपको मैथ अच्छी आती है, आपको शौक है, तो आई थिंक यू शुड चूज मैथमेटिक्स डिग्री। ठीक है, डेफिनेटली। और लाइक आपने मोस्टली देखा होगा, इवन हम कंप्यूटर साइंस के फील्ड से हैं, इवन जितने भी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स होते हैं उनमें कंप्यूटर साइंस के फील्ड में वो मैथमेटिशियन हायर करते हैं। परफेक्ट, या ऐसे ही है। और क्योंकि जितने भी आगे एआई से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, तो उनको करने के लिए इवन बीइंग अ कंप्यूटर साइंटिस्ट हम सिर्फ मॉडल्स की हद तक काम कर रहे हैं। मेरी जानने वाली नहीं है, मेरी जानने वाली है, उन्होंने बीएस मैथमेटिक्स किया और अब वो इंटरनेशनली जो है ना वो डेटा साइंस के अंदर जो है ना मास्टर कर रही है। और उनकी जो डिग्री की वो प्री रिक्विजिट थे वो मैथमेटिक्स की डिग्री थी। अच्छा लेक साहब, इस पे थोड़ा सा ये भी बच्चों को बताएं कि आप माशाल्लाह डॉक्टर अबका और आप कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। हमारे फैसलाबाद कैंपस में कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम पढ़ाया जा रहा था, और अभी रिसेंटली में हमने वहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग अंडर एनसीएक, ये हमारा विजिट भी हुआ एनसीएक का और अप्रूव हो गया सक्सेसफुली। और माशाल्लाह इस साल 2025 फॉल में हमारे कैंपसेस के साथ फैसलाबाद कैंपस में भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग एनसीएक की क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें बच्चे प्रेफरेंसेस दे रहे हैं। 11 जुलाई उसकी लास्ट डेट है। ज़रा कंप्यूटर इंजीनियरिंग एनसीएक के जो हमारा प्रोग्राम है इसके ऊपर भी जरा ब्रीफ करें कंप्यूटर साइंस के साथ। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हमारी यूडी की जो ब्यूटी है ना, उसमें तो ये है कि हमारी कोई भी डिग्री इस तरह स्टार्ट नहीं होती कि हमने एक डिग्री स्टार्ट कर दी है। हमारी जितनी भी डिग्रीज हैं जो कि उनके रेलेवेंट बॉडीज हैं, जितनी हमारी इंजीनियरिंग है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से, जितनी हमारी कंप्यूटिंग डिग्री है वो हमारी पाकिस्तान जो कि कंप्यूटिंग काउंसिल है उसके साथ हमारी जो है वो उनसे एग्रीडेशन है। अच्छा, अब ये एक प्रोग्राम है हमारा कंप्यूटर इंजीनियरिंग का। अब ये बेसिकली डिग्री
इसको दो डिफरेंट बॉडीज जो है ना वो उसको एक्सेप्ट करती है। एक तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से भी हो सकता है आपकी ये डिग्री, दूसरा ये डिग्री आपकी पाकिस्तान जो हमारी नेशनल कंप्यूटिंग काउंसिल है उससे भी हो सकती है। तो ये डिग्री जो फैसलाबाद में हम ऑफर कर रहे हैं ये पाकिस्तान की जो कंप्यूटिंग काउंसिल है उसके साथ है। अब जब कंप्यूटिंग काउंसिल या जो भी काउंसिल है वो आपको ऐसे नहीं अलाउ करती कि आप एक डिग्री स्टार्ट कर दें, बल्कि उनकी कुछ SOPs होती हैं, उनकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। वो इतनी बेसिक नहीं होती, वो अच्छी भली होती है कि इतने नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स होने चाहिए, इतने PhDs होने चाहिए, ये लैब फैसिलिटीज होनी चाहिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह यूटी के पास जितनी भी डिग्रीज हैं वो तमाम इन रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं। और तमाम की तमाम हमारी जो काउंसिल है हम उनके साथ जो हैं वो एफिलिएटेड हैं, हमारी डिग्रीज वो एक्सेप्ट करते हैं। और ये डिग्रीज फिर जब एक्सेप्ट करते हैं तो वो दुनिया के अंदर भी वैसे ही मानी जाती हैं। तो एक दो सवाल ले लेते हैं सर, फैसलाबाद के रिलेटेड आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रही हैं। अच्छा, जो रिक्वायरमेंट फॉर BS एनवायरमेंटल साइंस है इसका राना नबी साहब आप क्विकली आंसर कर दें, तब तक मैं फिल्टर आउट कर लेता हूँ जो फैसलाबाद के रिलेटेड क्वेश्चन है। जी, इसमें जो एनवायरमेंटल साइंस जो हमारा प्रोग्राम है ये इसमें ECAT रिक्वायर्ड नहीं है। इसी तरह एक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग प्रोग्राम है दैट इज़ फ्रॉम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, जो एनवायरमेंटल साइंसेज है, इट्स नॉट ए इंजीनियरिंग प्रोग्राम। इसमें ECAT रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसमें जो है ना अप्लाई करें, इसमें कोई ECAT रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने ECAT व्हाट्सएवर दिया है तो आप इंजीनियरिंग और दिस एंड दैट प्रोग्राम्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम उन प्रोग्राम में शामिल है जिसमें हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। ठीक है सर, हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के जिनमें वो ये जानना चाह रहे हैं फैसलाबाद कैंपस में इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, किस तरह के होते हैं? जी, फैसलाबाद कैंपस में एक तो लास्ट 7 ईयर्स में हमने 7 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज ऑन सस्टेनेबल टेक्सटाइल जो है वो ऑर्गेनाइज कराई हैं, बल्कि ये हाईएस्ट नंबर ऑफ जो है वो टेक्सटाइल की कॉन्फ्रेंसेज हैं बाय एनी डिपार्टमेंट इन द कंट्री, जिसने 7 ईयर्स में कंसेक्टिवली 7 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज कराई हैं। सर इसका क्या फायदा होता है BS के स्टूडेंट्स के, क्योंकि BS लेवल पर तो हम कॉन्फ्रेंसेज को, रिसर्च को इतना नहीं पॉपुलेट कर रहे होते हैं जी, ये हम ज्यादा देखते हैं कि मास्टर्स में या PhD लेवल पर कॉन्फ्रेंसेज का फायदा होता है। जी। तो हमारे BS लेवल के स्टूडेंट्स इनका क्या? अच्छा, इसमें ना बेसिकली ये जिसकी सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट है, अगर हम इंजीनियरिंग की कोई भी डोमेन ले लें और उसमें अगर हम लर्निंग आउटकम्स की बात करें तो दे टॉक अबाउट देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, तो ये कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं इंजीनियरिंग के जो कि सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज से या प्रैक्टिकल डूइंग से आ सकते हैं। तो जब आप एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराते हैं तो उसमें आपको कंपेयर्स भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, ऑन टॉप ऑफ इट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। अच्छा, वो बड़ा की है। हमारी जो कॉन्फ्रेंस है इसमें मोर देन 1000 जो इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स हैं वो आते हैं, एंड दैट्स एक्चुअली हेल्प अस नॉट ओनली इन टेक्सटाइल बट फॉर आवर अदर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, वहाँ पे कोलैबोरेशन करना, जॉइंट प्रोजेक्ट्स करना। तो ये एक काइंड ऑफ एक बड़ी चैनल एक्टिविटी होती है, वो जो कि हमें राउंड द ईयर उसके बेनिफिट्स आते हैं, तो कोलैबोरेशन बड़ी अच्छी हो जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ जो हम अदर इंटरनेशनल इवेंट्स करवा रहे हैं, हम ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल सस्टेनेबिलिटी स्टूडेंट कंपटीशन भी कराते हैं जिसमें मोर देन 500 प्रोजेक्ट्स हैं वो डिस्प्ले होते हैं, यूटी के भी होते हैं लेकिन ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके इट्स ऑल पाकिस्तान, तो वहाँ पे भी आ रहे हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल और मैकाट्रॉनिक्स टू सम एक्सटेंट वो IEEE का इवेंट भी करवाते हैं। तो ये कुछ हमारे इवेंट्स हैं जो कि डिस्पाइट बीइंग इन द कैंपस एंड फैसलाबाद लेवल, जो कि इंटरनेशनल लेवल की इवेंट्स हमारे कैंपस में रेगुलरली ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। सर, हमारा जो फैसलाबाद कैंपस है वो किस तरह स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है कंपटीशन के अंदर? अच्छा, इसमें जो मेरे ख्याल सबसे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, अगर आप देखें तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने जो प्रोजेक्ट्स दिए तो कैंपस लेवल पे वी हैव वन मोर देन 10 प्रोजेक्ट। सिमिलरली हर साल जो इग्नाइट की फंडिंग आती है उसमें भी हमारे अराउंड 10 प्रोजेक्ट्स जो है अब डिफरेंट IT रिलेटेड और इलेक्ट्रिकल और मैकाट्रॉनिक्स रिलेटेड वो विन किए जाते हैं। इसी तरह हमारे जो इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स हैं वो भी फंडेड आते हैं। तो जो हमारी फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं या फंडिंग है दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर आवर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये उनको बड़ा हेल्प कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है कि अगर हमने जो है ना बेसिकली ECAT नहीं दिया तो हम क्या करें? जी, अगर आपने ECAT नहीं दिया तो आप जो है ना हमारे उन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं जिनके लिए ECAT रिक्वायर्ड नहीं है।
तो उनकी जो लिस्ट है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर भी, हमारे फेसबुक पे भी अवेलेबल है, तो आप उसको देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और है कि और इसमें ऐड कर दे कि फैसलाबाद कैंपस के लिए आप जो है वो बीएससी केमिस्ट्री और बीएससी मैथमेटिक्स, ये दोनों हमारे बड़े, जिस तरह मैंने पहले बताया कि बड़ी स्ट्रॉन्ग फैकल्टी है इसमें, तो आप इन दोनों प्रोग्राम्स के लिए जो है वो एलिजिबल है, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें माशाल्लाह आपकी एक्सपर्टी भी है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में, आपकी इसमें स्ट्रेंथ है आपकी ये टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। ये ज़रा बताइएगा कि जो हमने, चूँकि इस प्रोग्राम की ना हमारी जो व्यूअरशिप है और हमारी हाईली डिमांड्स प्रोग्राम के ऊपर हमने पूरे पाकिस्तान में कुछ प्रोग्राम ना एक्सपेंड किए हैं, उनके लिए गेट्स ओपन किए हैं, क्योंकि कुछ प्रोग्राम में तो नॉमिनेशंस के थ्रू इनकी सीट्स थी, उनके थ्रू वो आते हैं नॉमिनेट होकर एक प्रोसेस के ज़रिए। लेकिन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग इस लिस्ट में फैसलाबाद कैंपस का प्रोग्राम ऑल पाकिस्तान बेस ओपन मेरिट में हमने शामिल किया है। ये पब्लिकली बच्चों की बहुत ज़्यादा डिज़ायर थी, तो उसमें थोड़ा सा ये उसमें ज़रा बच्चों को बताएं कि ये जो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग पूरे पाकिस्तान के, यानी कि पंजाब के लोग तो पहले अप्लाई करते थे, ओवरसीज़ चिल्ड्रन ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज भी अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, लेकिन ये ज़रा बताएं कि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में अदर दैन पंजाब से, यानी पूरे पाकिस्तान के जो बाकी बच्चे हैं वो भी, मैंने उनके लिए उनकी डिमांड के ऊपर ये ओपन किया है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी ज़रा रोशनी डालें। जी, अच्छा ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, जिस तरह आपने बताया कि जो पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं, और अगर हम ये भी देखें कि जिनकी इंडस्ट्री जो है वो ऑल ओवर पाकिस्तान है, अगर टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को देखा जाए तो फैसलाबाद एज हब, बट एट द सेम टाइम लाहौर और कराची और मुल्तान और अदर एरियाज़ में बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज हैं। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रेफर भी कर रहे होते हैं कि फ्रॉम डिफरेंट एरियाज़ वो उस फैसिलिटी को अवेल कर सकें। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का मैं एक एडेड एडवांटेज जो कि यूईटी के टेक्सटाइल इंजीनियरिंग प्रोग्राम में है वो ये है कि हमारी डिग्री कंपोजिट है। टेक्सटाइल की बेसिकली 4 स्पेशलाइजेशंस होती हैं, जिस तरह स्पिनिंग है जहाँ पे धागा बनने की टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया जाता है और पढ़ाया जाता है, देन द फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, देन द डाइंग एंड फिनिशिंग, एट द एंड द स्टिचिंग एंड डिफरेंट ग्राफिक्स। तो अब इसमें जो यूईटी का प्रोग्राम है वो कंपोजिट डिग्री दे रहा है। अच्छा ये बड़ा क्रिटिकल है कि क्योंकि हमारी एक स्पेशलाइजेशन का जो आउटपुट है वो नेक्स्ट का इनपुट है, तो ये बहुत ही अदर जो स्पेशलाइजेशन है उसकी तरह नहीं है, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है, तो उसमें कंपोजिट डिग्री को बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है और हमें इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है कि आपका ग्रेजुएट जो है वो बड़ा वेल वर्स्ड है इन ऑल दोज 4 फील्ड्स। तो उनको अडॉप्टेबिलिटी, और समटाइम ये भी होता है कि किसी एक सेक्टर में फॉर सम रीज़न उस ईयर एक्सपोर्ट कम हो जाती है या कुछ चीज़ें हो जाती है, तो उस ग्रेजुएट के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो दूसरे सेक्टर में भी जा सकता है। तो कंपोजिट डिग्री का होना और यूईटी की इंटरनेशनल रैंकिंग होना, और उसके साथ हमारे अपने जो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है मोर देन 170 इक्विपमेंट, और हम ईच ईयर एटलीस्ट 5 to 10% इक्विपमेंट जो है ना वो ऐड करते रहते हैं विद द सपोर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन और फंडेड प्रोजेक्ट। तो ये एक एडेड एडवांटेज है कि ये बड़ा अप टू डेट डिपार्टमेंट है और इसकी इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा है, और हम बड़ा डाइवर्स और कंपोजिट जो डिग्री प्रोग्राम है वो ऑफर कर रहे हैं। परफेक्ट। अच्छा एक क्वेश्चन है कि ये यूईटी जो ऑफर कर रहा है फैसलाबाद कैंपस के अंदर, जो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, यस दिस इज टेक्सटाइल इंजीनियरिंग नॉट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। अच्छा एक और सवाल है कि स्प्रिंग इनटेक के बारे में पूछा गया है। यस वी इंशाल्लाह विल टेक स्प्रिंग इनटेक, बट अभी जो है उसका डिसीजन फाइनल नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी के जो डिसीजन होते हैं वो हमारी हायर अथॉरिटीज़ से फाइनलाइज होने के बाद ही हम उसको पब्लिकली अनाउंस करते हैं। तो इस दफ़ा तो हमने स्प्रिंग इनटेक ली थी, बट अभी इस नेक्स्ट ईयर में है वो बेसिकली अभी उसका जो है ना वो अप्रूवल फाइनल नहीं है। तो इंशाल्लाह आप हमारे फेसबुक या लिंक्डइन पेज पे हमारे साथ कांटेक्ट में रहें, हम वहाँ पे अपडेट देते रहेंगे। फैसलाबाद में बीएस फिजिक्स का प्रोग्राम अभी नहीं है। अच्छा एक और क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन डिप्लोमा रिपीट हो रहा है डिप्लोमा होल्डर्स का, डिप्लोमा आप होल्डर्स बताइएगा कि डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं वो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं, पर्टिकुलरली फैसलाबाद कैंपस से कौन कौन से प्रोग्राम? थैंक यू डॉक्टर आपका। इसमें मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो ऑल प्रोग्राम्स में अब इक्वल अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू देयर एलिजिबिलिटी वो एलिजिबल हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी लाइक दैट आपने डिप्लोमा किया है, तो आप इक्वल अपॉर्चुनिटी रखते हैं A1 के इक्वलेंट। आप ओपनली ये बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, DA कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इसमें भी DAs जो हैं रेलिवेंट टू द मैकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, इस प्रोग्राम के अगेंस्ट वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है एज कम्पेयर टू द FSC कैंडिडेट्स। थैंक यू। अच्छा एक और सवाल है जी, हाउ गुड आर द लैब्स ऑफ फैसलाबाद कैंपस डिपार्टमेंट्स?
एक जो हमारी स्पेशलिटी है कि हमारे हर डिपार्टमेंट में मोर देन 10 लैब्स हैं, मोस्टली हैव अराउंड 14 to 17 लैब्स, और हर लैब में स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है। तो ये एक बड़ा ओके, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट यूटी। इंजीनियरिंग में वैसे भी एक्रीडेशंस जो हैं वो अगर 3 years या मोर लेनी हो तो यू मस्ट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लैब। एंड सेकेंडली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूटी एंड इज द पायनियर एंड द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, इट ऑलवेज सेट अ वेरी गुड स्टैंडर्ड्स इन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। तो हमारी लैब जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, और इसी वजह से हमारे जितने इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं उनमें मास्टर्स भी हो रहा है और उनमें पीएचडी भी हो रही है। तो इट आल्सो रिफ्लेक्ट द कॉम्पिटेंसी ऑफ आवर लैब्स एज वेल एज द ह्यूमन रिसोर्स। ओके जी, तो एक और क्वेश्चन है कि बी आईसीएस के स्टूडेंट्स बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और मैकेट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में जो है ना वो एडमिशन ले सकते हैं? जी थैंक यू। लाइक आईसीएस फिजिक्स मैथ कंप्यूटर के कॉम्बिनेशन से आप ऑल इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फर्दर डिटेल्स इन्हें लिंक हमारी वेबसाइट से मिल जाएगी। या इसमें एलिजिबिलिटी जी, क्राइटेरिया पे बिल्कुल। आप जाएंगे तो वहां पे आपने जो भी आपका कॉम्बिनेशन है आप उसके साथ चेक कर सकते Check हैं कि आप कौन कौन से प्रोग्राम्स में एलिजिबल हैं। हाँ। तो आप कंप्लीट लिस्ट वहां पे बिल्कुल। अवेलेबल है, इसी तरह तो आप आप काइंडली वहां पे जाके खुद भी सर्च आउट करें। फिर अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप हमसे ये हमारी पूछ सकते हैं। वेबसाइट है admission.uit.edu.bk। इस पे जाके अपना एलिजिबिलिटी जो हमारा कैलकुलेटर है उसके ऊपर आप अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे तो हमारा कैलकुलेटर आपको बताएगा कि यूटी में ऑफर होने वाले कौन कौन से प्रोग्राम्स के अंदर जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन है जी, डज वी अप्लाई इन एआई विदाउट ईकैट? नो जी, आप ईकैट विदाउट ईकैट आप एआई के प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते। इस साल मेरिट इंक्रीज होने के चांस हैं? इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है। इस साल आप इस तरह, मैं कोई इसको यस नो में आंसर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये गाइड कर सकता हूँ कि इस दफ़ा यूटी ने 2500 सीट्स इंक्रीज किए हैं, तो मेरिट जो है वो ऑफ कोर्स चेंज होगा। तो ज़्यादा सीट्स हैं तो यू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू अप्लाई। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप सिर्फ वन टाइम पेमेंट करेंगे और फिर यूटी के अंदर ऑफर होने वाले तमाम प्रोग्राम, यूटी लाहौर, यूटी फैसलाबाद, यूटी काला शाकाकू, नारोवाल, रचना, तमाम के तमाम कैंपसेस के अंदर जितने प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। अपने प्रेफरेंस से चूज करनी है और देन यू कैन गो। और आप वो प्रेफरेंस सेलेक्ट करें जिसमें आपको लगता है कि आपका मोस्ट इंटरेस्ट है, आपके इंटरेस्ट का जो प्रोग्राम है आप उसको टॉप प्रेफरेंस पे रखें। आप ये ना सोचें कि आपका मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा। अगर आप उसमें अप्लाई नहीं करेंगे तो आपने जो सेकंड प्रेफरेंस दी हुई होगी आप उसमें ऑटोमेटिकली कंसीडर हो जाएंगे। सो इस तरह से आप जितने पॉसिबल प्रोग्राम्स हो सकते हैं आप उन सब के में अपनी प्रेफरेंसेस सेट करें ताकि एटलीस्ट किसी ना किसी प्रोग्राम में आप एडजस्ट हो या सकें। परफेक्ट। और जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट केमिस्ट्री में है, ठीक है, तो आप केमिस्ट्री देखिए कि केमिस्ट्री यूटी कौन कौन से कैंपसेस के अंदर ऑफर कर रही है, तो आप तमाम कैंपस में अप्लाई करें क्योंकि फाइनली यू विल गेट द यूटी लाहौर डिग्री। और ऑफ कोर्स वी हैव फॉरेन क्वालिफाइड फैकल्टी इन ऑल कैंपसेस, वी हैव लैब फैसिलिटीज, वी हैव a very good diverse campus life, so you will get all the benefits. Okay, so let's take one more question. लाहौर के अंदर केमिस्ट्री जो है, यूटी लाहौर की केमिस्ट्री इज गुड, ऑफ कोर्स गुड, बहुत अच्छी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है हमारा और ये काफी उसमें पुराना ये department बिल्कुल है। और तारीखी डिपार्टमेंट है जिसकी हमारी 104 साल की एक हमारे 104 साल यूनिवर्सिटी की एक लाइफ होने वाली है। उसमें एक मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि एक प्रोग्राम उसी डिपार्टमेंट में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के साथ भी आ रहा है अच्छा बिल्कुल, और हाँ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अभी हमारे कुछ बच्चे काफ़ी क्वेश्चन इसके ऊपर कर रहे हैं कि यूईटी एक माशाल्लाह एक प्रेस्टिजियस इदारा है, तो मेरिट के हवाले से ना, मेरिट के हिसाब से काफ़ी वो बच्चे सोचते हैं, तो लास्ट ईयर से बिल्कुल कंपेयर ना करें, बल्कि इस मरतबा तो आफ्टरनून प्रोग्राम्स में हमारी बहुत ज़्यादा सीट्स हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, रिक्रूटमेंट ड्राइव इन द डिपार्टमेंट। जी, हमारे पास हर साल हम एनुअल कैरियर फेयर कराते हैं जिसमें तकरीबन कुछ 200 से ज़्यादा कंपनीज आती हैं यहाँ पे इन कैंपस हायरिंग करने के लिए। इसके अलावा हर डिपार्टमेंट के अंदर भी जो उस डिपार्टमेंट की इंडस्ट्रीज हैं वो भी रिक्रूटमेंट ड्राइव करती हैं और इवन की काफ़ी सारी इंडस्ट्री कंपनीज हैं वो हमसे रिक्वेस्ट करके हमें कहती है कि आप इस दफ़ा स्टूडेंट्स को रिकमेंड करें कि आप हमें जो है ना वो हमारी कंपनीज के अंदर अप्लाई करें। इवन कि मेरे पास खुद पर्सनली, बिकॉज आई एम फैकल्टी मेंबर इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, तो काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट आती है, एचआर हमसे रब्ता करते हैं कि आप हमें स्टूडेंट्स दें, हमारी जो अपनी कंपनी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें से हमें रिकमेंडेड है कि आप यूटी के जो है ग्रेजुएट्स हायर करें।
इसमें मैं ऐड भी करूँ कि जो कैरियर है बेसिकली अगर आप तमाम पाकिस्तान की टॉप इंडस्ट्रीज देख लें, को यूटी को इट्स नाउ 103 इयर्स, तो तमाम जो अक्सर सीईओज हैं, जीएम्स हैं, टेक्निकल डायरेक्टर्स हैं, वो इटसेल्फ जो है वो यूटीएन है। अगर मैं एग्जांपल दूं, पाकिस्तान की नंबर 1 जो एक्सपोर्ट अभी है वो इंटरलूप है, एंड द बोथ जो भाई हैं ब्रदर, दे आर बेसिकली इल्मुनाई ऑफ यूटी। तो एक्चुअली वो इसकी एक लेगेसी है, जो एम्प्लॉयर्स हैं वो ड्यू टू हमारी डिग्री की वर्थ की वजह से वो नंबर 1 प्रेफरेंसेस जो हैं वो यूटी के ग्रेजुएट्स को देते हैं। इस वजह से कैरियर बहुत अच्छा, मतलब प्रोस्पेक्टिव बहुत अच्छे हैं। और इंटरलूप की जो आपको, अगर आप उसके बारे में देखें तो वो तो पूरी दुनिया को जो टेक्सटाइल की जो चीजें हैं वो प्रोवाइड कर रही है, और हमारे एम्प्लॉय हर जगह पे हैं, इंटरनेशनली और नेशनली भी अगर हम देखते हैं, जितने भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें यूटीएंस। अच्छा, इसमें ना एक, अगर इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अगर आपने ये चेक करना है ना कि यूटीएंस कहाँ कहाँ पे हैं पूरी दुनिया में, कितनी बड़ी कंपनीज में सर्व कर रहे हैं, तो आप लिंक्डइन पे जाएं। लिंक्डइन पे आप यूटी का फिल्टर लगा के सर्च करें, यू विल अमेज के यूटी के जो लोग हैं दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स जब एक लीडर एक कंपनी का एक जो है उसको उसके टॉप पोजीशन पे बैठा है, तो जब उसके सामने ऑफ कोर्स यूटी की किसी कैंडिडेट की डिग्री आएगी तो डेफिनेटली ही विल बी बाइस। तो ये एक बहुत बड़ा एक यूनिक एडवांटेज मिलता है इंडियंस को। उसमें लेक साहब मैं थोड़ा सा आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता चलूँ कि जिस इदारे की, जिस इंस्टीट्यूट की 103 साल की लाइफ हो, उसने एक लेगेसी के साथ, वो एक लेगेसी है, यानी 103 साल के अंदर उसकी अचीवमेंट्स हैं जो दुनिया में आप देख रहे हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से बताया कि हमारे अलुमनाई पूरी दुनिया के टॉप ब्रांड कंपनीज, टॉप कंपनीज में इस टाइम परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक इस इदारे की 103 साल की जो हमारी स्ट्रेंथ है कि आज हम इस मकाम पर हैं कि हमारे जो अलुमनाई हैं पूरी दुनिया में परफॉर्म कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, कुछ एक दो और क्वेश्चन है, देन हम इसको कंक्लूड करेंगे। एक और क्वेश्चन आया है राइट, जिसमें वो पूछ रहे हैं कि अगर हम मल्टीपल प्रेफरेंसेस सेट करते हैं और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता लेकिन वो उसकी फीस सबमिट करवा देते हैं, सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो क्या उनकी फी रिफंड होगी? अच्छा राना नबी साहब, आई थिंक जी उसमें लाइक साहब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जब आप प्रेफरेंसेस, जैसे कि डॉक्टर अबका ने आपको इसमें ब्रीफली बताया कि जो आपकी प्रोग्राम चॉइसेस हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम चॉइसेस अपनी प्रेफरेंस को सेट करें। जब आप एक प्रेफरेंस ऑर्डर सेट कर लेते हैं और आप व्हाट्सएवर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आता, दैट मीन्स यू आर नॉट सिलेक्टेड टिल नाउ दैट द अकॉर्डिंग टू मेरिट। आप सेकंड लिस्ट में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको साथ ही अकॉर्डिंग टू दैट आपको ड्यूज एंड डॉक्यूमेंट्स के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में रिपोर्ट करना होगा, और ऑटोमेटिकली जो आपकी फीस सबमिट हुई है वो आप जब अपनी नेक्स्ट लिस्टों में अपग्रेड होते जाते हैं, अगली प्रोग्राम्स में अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस अपग्रेड होते जाते हैं, तो ऑटोमेटिक आप ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। दैट मींस योर फीस एवरीथिंग इज ट्रांसफरेबल। ठीक है, तो आप उसका पार्ट बन मैं जाते हैं। आपको थोड़ा सा इसको आसान कर देता हूँ, मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप चाहते थे कि आप फैसलाबाद में पढ़ना चाहते हैं और आपने अप्लाई किया दो डिसिप्लिन के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने अप्लाई कर दिया बीएस केमिस्ट्री के अंदर, बीएस मैथमेटिक्स में। अब आपने बीएस केमिस्ट्री आप करना चाहते हैं, आपने उसको फर्स्ट प्रेफरेंस रखा है और आपकी सेकंड प्रेफरेंस है बीएस मैथमेटिक्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरिट की वजह से आपका जो नाम है वो फर्स्ट टाइम आ जाता है बीएस मैथमेटिक्स के अंदर, तो आपने वो फीस जमा करवानी है। जैसे ही मेरिट बनेगा, क्योंकि मेरिट बनता इस तरह है कि कुछ स्टूडेंट छोड़ देते हैं, किसी और उनका आगे अपग्रेड हो जाता है, एडमिशन किसी और डिपार्टमेंट में हो जाता है, तो जैसे ही वो स्लॉट खाली होगी, आपका मेरिट उस डिपार्टमेंट के मुताबिक बनेगा तो आपका नाम ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा और आपका एडमिशन उस डिपार्टमेंट में। तो इसलिए यू हैव टू सिलेक्ट ऑल द प्रेफरेंसेस वेरी वाइजली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे रैंडम सिलेक्शन नहीं करनी, अदरवाइज यू और इवन सीट भी अपनी सिक्योर करनी पड़ेगी। अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस में आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका किसी भी डिसिप्लिन में नेम आता है तो आपको अपनी सीट सिक्योर करनी होगी। अगर आप अपनी सीट सिक्योर नहीं करेंगे देन आप इस सारे लूप से निकल सिक्योर से मुराद है आपको एडमिशन फीस, उसमें एडमिशन फीस और आपको रिपोर्ट करना है उसमें, और तभी आप अपग्रेड होंगे। और प्रेफरेंसेस में आप उस प्रेफरेंसेस को प्रायोरिटाइज करें जिसमें आपका ज्यादा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ताकि आप अपने डिजायर्ड डिसिप्लिन को अचीव कर सकें। और इसमें मेरे ख्याल में ये भी ऐड कर दूं कि अक्सर ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स का जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता, क्योंकि यूईटी जो है एक बहुत बड़ा अदारा है और इसके बहुत से कैंपसेस हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि समटाइम किसी वजह से वो एक ही डिसिप्लिन में जाना चाह रहे होते हैं, किसी को इलेक्ट्रिकल पसंद है, किसी को मैकेनिकल, अकॉर्डिंग टू देयर चॉइसेस, तो वो उस बाकी जो है वो उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो अक्सर ये देखा गया कि स्टूडेंट बड़ा डिसहार्ट हो जाते हैं, लेकिन यूईटी नॉर्मली 4 से जो है ना
वो साथ मेरिट लिस्ट लगाता है, डिपार्टमेंटल लिस्ट भी लगाता है। उसमें- तो देयर इज अ गुड चांस कि आपका अगर पहले मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो यू कैन स्टिल सिक्योर जो एडमिशन एट यूटी। और इस मरतबा मेरा ख्याल है राना साहब बताएंगे कि वॉक इन भी जो जी, ऑप्शन दी गई है। उसमें बिल्कुल इसी तरह के आपकी आफ्टर प्रेफरेंसेस जब हमारी मेरिट लिस्ट शुरू हो जाएगी, आपकी प्रेफरेंस में अगर आपका पहली लिस्ट में मेरिट फॉल कर जाता है तो देन यू हैव टू रिपोर्ट टू द एडमिशन ऑफिस ऑफ यूटी लाहौर। आपको रिपोर्ट करना, अगर आप उसमें आपका नाम फॉल कर गया, आपने जो प्रेफरेंस दी थी मेरिट में, अगर आप रिपोर्ट नहीं करते तो फिर आप मेरिट से दैट अगली लिस्टों में कंसीडर नहीं होंगे। एक तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आपका जिस लिस्ट में भी अकॉर्डिंगली नाम आपका फॉल करे, आपको रिपोर्ट करना है, देन आप ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाते हैं जो रिपोर्टेड कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब फिर इस तरह के हमारी जो कि बच्चों का बहुत इंटरेस्ट होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूईटी के मेरिट की वजह से पाइपलाइन में होते हैं, तो उसके बाद हमारी यानी कि हम 8 लिस्ट तक अपनी मेरिट लिस्ट जो है डिस्प्ले करेंगे। और इस मरतबा हमने एक चीज़ और इंट्रोड्यूस कराई है, वॉक इन डॉक्टर साहब इस तरह है कि जो बच्चे हमारे पास व्हाट्सएवर ई कैट दिया है, तो अगर ई कैट बेस्ड प्रोग्राम में है तो उन्होंने ऑब्वियसली ई कैट दिया होगा, तो अगर वो अप्लाई नहीं कर सके या उस वक्त वो हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे पास विजिट करते हैं, उसके लिए हमने एक प्रिस्क्राइब टाइम टेबल हमने अनाउंस कर दिया है। तो उसमें वो विद इन मेरिट जो बच्चे होंगे, दैन वो फर्स्ट कम फर्स्ट का मतलब है कि लेट्स सपोज उस बच्चे ने इलेक्ट्रिकल में एडमिशन लेना था, अप्लाई नहीं कर सका और हमारा एग्रीगेट उसके एग्रीगेट से मीट कर गया है, वो फर्स्ट कम फर्स्ट देन वो यूईटी में विजिट करेगा उन डेट्स में, तो वो इलेक्ट्रिकल की वो सीट टेक कर तो ले। इसका मतलब यह है कि आपने जो है वो हमारे सोशल जितने मीडिया पेजेस है जैसे कि लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो इनके साथ हम हमारे साथ जुड़े रहना है, हम अनाउंसमेंट करेंगे। और यूटी की जब अनाउंसमेंट होती है तो हर किसी की यही कोशिश होती है कि हमें ये चांस मिले। ओके, आखिरी 2-3 क्वेश्चन है, देन मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर मोहसिन साहब से कि वो कंक्लूड करें, वेलकम करें यूटी में लोगों को। एक सवाल ये है कि यूटी की जो डिग्री है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है? ये तो एक्सेप्टेबल तो नहीं है, बल्कि इसके लिए तो हमें कहना चाहिए हाई रैंक है। पूरी दुनिया जो है हमारी उसको डिग्री को एक्सेप्ट करती है। और उसमें आप क्यूएस रैंकिंग को देखिए, क्यूएस रैंकिंग एक दुनिया के अंदर एक्सेप्टेबल बॉडी है जो कि रैंकिंग करती है यूनिवर्सिटी में। इवन कि अगर मैं आपको मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो खुद को कह रही हैं कि वो नंबर 2 है, 3 है, लेकिन वो जिस रैंकिंग को मेंशन कर रही होती हैं वो शायद रैंकिंग भी इतनी अथराइज नहीं होती। अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखनी है तो मेरे ख्याल में क्यूएस रैंकिंग देखें आप, ठीक है? तो क्यूएस रैंकिंग जो है वो देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा व्हाई यू शुड चूज यूईटी। अच्छा जी, यूईटी ने कुछ प्रोग्राम्स में जो सीट्स इंक्रीज की हैं वो सारे प्रोग्राम्स में की है। जस्ट लाइक पहले हमारे पास सिर्फ केमिस्ट्री प्रोग्राम हो रहा था, अब हमने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ऑफर किया है। तो हमने बहुत सारे न्यू प्रोग्राम्स ऑफर किए हैं जिनमें कुछ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स भी हैं, कुछ प्योर साइंसेस के प्रोग्राम्स भी हैं, कुछ हमारे पास सिर्फ मॉर्निंग में थे, हम अब उनको आफ्टरनून में लेकर आए हैं। तो इस तरह ओवरऑल हमारे पास 2500 सीट्स जो हैं वो इंक्रीज हुई हैं। तो आपके चांसेस ज्यादा हो सकते हैं एडमिशन सिक्योर करने के। इसलिए तो हम आपको बार बार ये कह रहे हैं कि आप जब हमसे पूछते हैं कि इस दफ़ा मेरिट जो है ना वो कितना होगा, तो हम आपको कहते हैं कि आप पिछले मेरिट पे रिलाय ना करें, ठीक है? आप पिछले मेरिट पे रिलाय ना करें। उसकी रीज़न ये है कि मेरिट तो चेंज होगा क्योंकि सीट्स बढ़ गई हैं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर हमारे पास टोटल 7000 थी, दैट इज नॉट अ राइट नंबर, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ। तो इस दफ़ा हमारे पास जो है वो 9500 सीट्स हैं, तो ऑफकोर्स एक बिग डिफरेंस होगा, तो आप उसको ना करें। अच्छा, एक और सवाल है इसमें, स्कॉलरशिप्स। यस, यूटी स्कॉलरशिप दे रही है और यूटी जो है वो बहुत बड़ी अमाउंट में स्कॉलरशिप दे रही है। और यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं यूईटी में, मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बोर्ड के टॉपर्स होते हैं। जो बोर्ड के टॉपर्स होते हैं उनको एक तो बोर्ड की तरफ से स्कॉलरशिप मिल रहा होता है, और फिर जब वही बच्चे यूईटी में आते हैं तो यूईटी इनको मेरिट स्कॉलरशिप भी देती है। अमेजिंग। और फंड के भी आई थिंक फीस और फंड की भी 100% फी वेवर है, और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी हमारे पास होते हैं जिनके जो हम उनके फाइनेंशियल स्टेटस देख के उसके अकॉर्डिंगली और इसमें मैं ऐड भी करूँ कि जो हमारे स्कॉलरशिप्स जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही होती है वो तो काफी एक्सपेंसिव है, और उसमें मेरा ख्याल है हाईएस्ट नंबर जो स्कॉलरशिप मिल रहा होता है वो यूईटी को। ऑन टॉप ऑफ इट अगर हम फैसलाबाद कैंपस की बात करें तो 2 ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं जो कि डेडिकेटेड फॉर फैसला ऑन टॉप ऑफ इट है। अभी हमने रिसेंटली लास्ट ईयर जो है वो इंटरलूप के साथ कोलैबोरेशन की है और उन्होंने हमें ईयरली तमाम प्रोग्राम्स के लिए स्कॉलरशिप जो है अनाउंस किया है, फर्स्ट बल्कि उन्होंने दे भी दी है। सिमिलरली वी हैव सम ओल्ड स्कॉलरशिप फ्रॉम द
इंडस्ट्री, तो स्कीना बशीर स्कॉलरशिप फ्रॉम अनदर ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ हमारे डेडिकेटेड फैसलाबाद कैंपस के लिए स्कॉलरशिप्स हैं जो कि ऑन टॉप ऑफ द एग्जिस्टिंग स्कॉलरशिप्स हैं जो कि सेंट्रली यूईटी की तरफ से यूईटी में और बाकी कैंपसेस में जो है ना वो दिए जाते हैं। सर यूईटी को मेन एडवांटेज ये है कि यूईटी के एलुमनाई जो है वो बहुत वास्ट है और बड़ी अच्छी अच्छी जगह पे है, तो इसलिए वो जब भी आते हैं तो वो यूईटी को कुछ ना कुछ डेडिकेट जरूर करते हैं, इधर इन द सेंस ऑफ के वो कुछ स्टूडेंट्स को अपने डिपार्टमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे होते हैं या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकोमोडेट कर रहे होते हैं, तो वो हमेशा इन टच रहते हैं यूईटी के साथ। अगर आप गूगल करें स्कॉलरशिप इन यूटी लाहौर, तो हमारी मेन वेबसाइट के ऊपर एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है जिसमें हर एक ऑर्गेनाइजेशन मेंशन है और आगे उसका मेंशन है कि ये ऑर्गेनाइजेशन या ये बॉडी कितना स्कॉलरशिप यूटी को दे रही है। बल्कि एलुमनाई की लेकर आपने बात की तो रिसेंटली ये हमारे यूईटी एलुमनाई जो इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में है, आई थिंक उन्होंने अभी यूईटी लाहौर के तमाम के हॉस्टल्स हैं उनको उन्होंने आरओ प्लांट्स के साथ उसको करवाया, फिक्स करवाया और यानी कि फिल्टर्ड प्योर वाटर की फैसिलिटी उस आरओ प्लांट की सूरत में हमारे हॉस्टल्स के तमाम जितने हॉस्टल्स हैं और ये एज वेल एक्सपेंड होके तमाम कैंपस की तरफ इंशाल्लाह होगी। और जैसे रैंकिंग की भी बात हो रही थी तो व्यूअर्स आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि हम पाकिस्तान नंबर 1 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हैं और जिसकी एक 103 साल की एक लेगेसी है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की और पाकिस्तान का पहला ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है वो भी यूईटी लाहौर है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको अगर प्रोग्राम बेस अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग देखें जैसे लेक साहब ने आपको यूएस रैंकिंग का बताया, तो इस टाइम जो पेट्रोलिंग इंजीनियरिंग एम आई राइट इन वर्ल्ड टॉप 50 प्रोग्राम, वर्ल्ड टॉप 50 इन पेट्रोलिंग इंजीनियरिंग, नंबर 1 इन पाकिस्तान and number top 50 in all around the world. Yes. तो अचीवमेंट इस तरह हमारे जो प्रोग्राम्स हैं इस तरह की उनकी हिस्ट्री है। तो अब माशाल्लाह जैसे डॉक्टर साहब का कैंपस फैसलाबाद के हमारे जितने कैंपसेस में इस जब जो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है वो सिर्फ फैसलाबाद कैंपस में, अच्छा, और उसकी वजह वो इंडस्ट्रियल जोन है जो पाकिस्तानी मैनचेस्टर है जहाँ पे वो हमारा ये टेक्सटाइल प्रोग्राम। अच्छा एक सर वैसे आप भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से यूटी में सर्व कर रहे हैं। अगर एक मजे की बात ये है कि यूटी के जो लोग हैं ना वो ये नहीं है कि सिर्फ वो इंडस्ट्री में काम करें। अगर आप पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी देख लें, सीएसएफ के एग्जाम देख लें, पीएमएस के एग्जाम देख लें और उन्हें यूटीएन का नंबर देखें तो यू विल अमेज्ड। उसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि यूटी की जो कैंपस लाइफ है वो उनकी लाइफ में, वो उनकी पर्सनैलिटी में वो वैल्यूज ऐड करती हैं कि वो उस लेवल के एग्जाम्स को वो और बड़ी अच्छी नंबर के साथ, बड़ी अच्छी पोजीशंस के साथ वो करें। कितने लोग हैं पंजाब पुलिस में देख लें आप, जो है ना वो वैसे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं इनके अंदर देख लें, यू विल फाइंड यूटीएम्स एवरीवेयर। अच्छा जी, आई थिंक वी हैव डन विद ऑल द क्वेश्चंस, स्टिल वी आर रिसीविंग सो मेनी क्वेश्चन बट अभी हमारे पास लिमिटेड टाइम है। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी इसी टाइम नए कैंपस के साथ। हम आपको बताएंगे कि यूटी के जो कैंपस हैं वो किस तरह जो है स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं, किस तरह पाकिस्तान की जो यूथ को फैसिलिटेट कर रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी में किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो डॉक्टर मोहसिन साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आने वाले लोगों को वेलकम करें फैसलाबाद में और एक शॉर्ट सा बता दें कि वाई यूटी फैसलाबाद। First of all, I would like to say that we love to welcome all our students at the Faisalabad campus on behalf of UT and Faisalabad campus. Secondly, जिस तरह के बताया कि ये एक इंडस्ट्रियल हब है, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स हैं, वेरी गुड फैसिलिटीज़ हैं ट्रांसपोर्ट की, अकोमोडेशन की, एंड ऑन टॉप ऑफ इट डिजिटल लाइब्रेरी एक्सेस है, वेरी गुड एक्सेस ऑफ द लाइब्रेरी। और इसके साथ साथ अगर आपने फर्दर डिटेल्स डिपार्टमेंट्स की देखनी हो तो आप हमारा जो ऑफिशियल पेज है एडमिशन का उसको भी देख सकते हैं। सिमिलरली fsd.ut.edu.pk we have annual magazine, so if you want to see the whole spectrum of the activities which is being carried out at the Faisalabad campus आप उसको देख सकते हैं। So I'm sure कि आप अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं और Faisalabad campus will be a great choice for your future career. Okay, so we are offering computing programs, engineering programs and science and technology programs at UT Faisalabad. So for computing you can apply in computer engineering, computer science. For engineering programs, you can apply in chemical engineering, textile engineering, mechatronics and control engineering, electrical engineering, and for our science programs, you can apply in BS chemistry and BS mathematics. So that's it for today, and thank you so much everyone for joining us today in this informative podcast.
एंड ऑडियंस के लिए विश यू वेरी बेस्ट लक एंड हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। Okay, जी, अल्लाह हाफिज़।